Good evening, everyone. Once again, we are going to start with a new chapter. This chapter is about nitrogen containing compounds, and mainly the point of discussion in this chapter will be amines. Amines का discussion करेंगे हम. So once again, we will begin this chapter first observing or first knowing about the importance of amines, integrating it with the real life, and further the topics like structure of amines, nomenclature of amines, that will be covered in today's session. If I talk about amines, these are derivatives of ammonia. Amines are derivatives of ammonia. Derivatives का मतलब amines किससे बनता है? Amines ammonia से form होता है. Ammonia is an inorganic compound. NH3, this is ammonia. And now when the hydrogen of ammonia is replaced by alkyl group, ammonia का hydrogen when replaced by alkyl group, it will be forming amines. Yes, if it is replaced by alkyl group, it will be forming alkane amine. और अगर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अराइल ग्रुप से हो रहा हो तो अराइल अमाइन. सिंपल. Again, a question should arise in your mind that what is the purpose of studying amines? Amines क्यों पढ़े? What is the purpose of studying amines, right? The first purpose is obviously this chapter has a weightage of around 6 marks in your board examination. So, in order to have that score, you need this chapter to be studied thoroughly. दूसरा, you will be surprised to know that these amines are occurring naturally in the components of the food, like vitamins में होता है. Amines are present in hormones also, in alkaloids also. These are the natural existence of the amines. Vitamin में होता है, hormones में होता है, alkaloids में होता है. इसके अलावा सिंथेटिक वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो अमाइंस आर प्रेजेंट इन पॉलीमर्स. जैसे आप जो नाइलॉन के क्लॉथ्स वेयर करते हो, दैट इज हैविंग अमाइन ग्रुप इन इट. उसमें अमाइन ग्रुप होता है, या अमाइन के डेरिवेटिव्स होते हैं, अमाइड ग्रुप भी होता है, या उसको बनाने में यूं कहो कि अमाइंस का यूज किया जाता है. अमाइंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रोटीन्स. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ये पढ़ने को आएगा दैट प्रोटीन्स आर नथिंग, दे आर पॉलीमर्स ऑफ, और प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स which are having specific geometry, which are having specific orientations, and polypeptides are nothing, they are actually formed from alpha amino acids, है ना. तो अमीनो एसिड्स का मतलब हुआ they are having amino group present in them. NH2 group is present. आपने कुछ हार्मोन के नाम सुने होंगे, जैसे आपने एड्रेनालाइन सुना होगा, एड्रेनालाइन, एफेड्रीन सुना है. एड्रेनालाइन एंड एफेड्रीन, दे बोथ आर नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस कंडीशन में सिक्रीट होता है, and these hormones increases the blood pressure. They are known to contain secondary amine group in them. इनमें secondary amine group present होता है. You can understand very well the importance of these two hormones. हमारे बॉडी में भी सिक्रीशन होता है इसका, स्ट्रेस हार्मोन की तरह जाना जाता है. It has many functions and it has secondary amine group present in them. Can you deny from these class of the compounds? नहीं, it is there in your biological system. आपने कभी नोवोकेन सुना है? नोवोकेन. Novocaine contains a tertiary amine group.
इसमें टर्शरी अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट लोग जो है इसे एनेस्थेशिया के फॉर्म में यूज करते हैं एंड इट कंटेन्स टर्शरी अमाइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें? टर्शरी अमाइन। ओके, सो from these few examples, this is very clear that like we have seen in haloalkanes, haloarenes, like we saw in alcohol, phenol and ethers, and in aldehyde ketones and carboxylic acid, even the amines have the involvement in our daily life. It is integrated with our real life, and without the use of these compounds, without the existence of these compounds, we cannot think of the processes or the functions which they are performing in our biological system. आपको पता है विटामिन की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता है प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेरॉइड्स, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्मोन्स, सो यू कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दीज कंपाउंड्स, इससे दूर नहीं भाग सकते. एंड यस, whatever compounds are involved in our biological system or the compounds which we are using in our life, if we have a proper understanding of that, it is our benefit. हम जो भी यूज कर रहे हैं या जो भी कंपाउंड हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है, उन कंपाउंड्स को अगर मैं अच्छे से समझता हूं तो वो मेरा बेनिफिट है, नहीं? Isn't it? Pass that duster. So now let's understand the classification of amines, which is very simple. अभी तक आपने जितने भी क्लासिफिकेशन देखे हैं ना, उन क्लासिफिकेशन से ये हट के है. It is very easy, very simple classification. How do we classify amines? So amines are actually derivatives of ammonia, ये याद रखना है. And तीन कंडीशंस याद रखने हैं इसमें. कैसे तीन कंडीशन याद रखना है? When only one hydrogen replaced by alkyl or aryl group, it forms प्राइमरी अमीन. अमीन भी बोलते हैं, अमाइन भी बोलते हैं. When only one hydrogen of ammonia is replaced by alkyl or aryl group, तो ये क्या फॉर्म करेगा? प्राइमरी अमाइन. अगर अमोनिया से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप से किया जाए, क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी अमाइन. इफ two hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl group, it forms सेकेंडरी अमाइन. क्या फॉर्म करेगा ये? सेकेंडरी अमाइन. और टर्शरी अमाइन क्या होगा? टर्शरी अमाइन इज व्हेन ऑल द थ्री हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप. व्हेन all three hydrogen are replaced by alkyl or aryl group, it forms टर्शरी अमाइन. तो देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का आइडेंटिफिकेशन इज वेरी न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम द वन विच यू हैव रेड सो फार. अभी तक आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासिफिकेशन कैसे किया है? On the basis of number of carbon atom to which the carbon bearing functional group is bonded, right? लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट है. आपको इसको डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया कंसिडर करना है और देखना है
कि अमोनिया का अगर एक हाइड्रोजन अल्काइल और अराइल ग्रुप से रिप्लेस हुआ हो तो प्राइमरी अमाइन, अगर दो हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हुई हो तो सेकेंडरी, अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हो तो टर्शरी। इसका जनरल फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं अभी फिलहाल, ये हो गया RNH2 प्राइमरी अमाइन, इसको मैं लिखूंगा R2NH सेकेंडरी अमाइन, और इसको मैं लिखूंगा R3N टर्शरी अमाइन। अब इसमें एग्जामिनेशन में अभी लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था, आइडेंटिफिकेशन करना था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था। CH3C CH3H NH2 और पूछा गया था आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। बोलो क्या होगा? दिस इज प्राइमरी अमाइन। लेकिन बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं, वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं जो एल्कोहल्स में या हेलो अल्केन्स में पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। यू हैव टू सी ये वाला पार्ट कि यहाँ पे नाइट्रोजन एटम के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि अमोनिया से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, और उस बेसिस पे यू विल बी गिविंग द आंसर। सिंपल। चलिए, नाउ here I will be showing you the structure of amines। पहले स्ट्रक्चर ले लेते हैं फिर नोमेनक्लेचर लेंगे। Structure of amines। Since amines are derivatives of ammonia, their structure resembles to that of ammonia। ये amines क्या है? amines अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर भी अमोनिया के स्ट्रक्चर को रिसेंबल करता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर पता है आपको कैसा होता है? अमोनिया इज हैविंग पिरामिडल शेप। अमोनिया इज हैविंग पिरामिडल शेप। कैसा पिरामिडल होता है मैं दिखाता हूं। नाइट्रोजन एटम पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन ऑर्बिटल विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and then these are the hydrogen atoms। तो अगर हम इनके बेस को ज्वाइन कर दें तो आप देखो ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बन रही है। थोड़ा सा इमेजिनेशन अपने दिमाग में सोचिए इस शेप को। ये ट्राइगोनल बेस है इसका, ट्रायंगुलर बेस, और ये ऊपर आ रहा है तो पिरामिड जैसा बन रहा है ना, तो द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल पिरामिडल। इस ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। नाइट्रोजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस sp3 हाइब्रिडाइज में ये तो आपको 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो लोन पेयर को कंटेन करता है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल इज लेस देन टेट्राहेड्रल। ऐसे 109.5 डिग्री एंगल होनी चाहिए, बट अमाइंस में ये एंगल 108 डिग्री होती है। इसमें अगर स्पेसिफिक मैं किसी ट्राई मिथाइल या टर्शरी अमाइन का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यहां से भी आप समझ सकते हो कि टर्शरी मिथाइल में ट्रायंगुलर बेस और पिरामिड फॉर्म हो रहा है। द ज्योमेट्री इज सेम पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल है।
हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, sp3, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर को कंटेन कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस में बॉन्ड एंगल इज ऑब्जर्व्ड एज 108 डिग्री। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होता है? 108 डिग्री। ठीक है, अलग अलग अमाइंस में थोड़ा बहुत वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। इस ट्राइमिथाइल अमाइन के केस में इट इज 108 डिग्री। ओके, so this completes your introduction and structure of amines. Now let's see nomenclature of amines. amines की nomenclature भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बस इसमें कुछ नए एलिमेंट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। 2 मिनट में समझ जाओगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। nomenclature में आपको ये याद रखना है that कॉमन सिस्टम में कॉमन नेमिंग सिस्टम में it is simply named as alkyl followed by suffix amine. कॉमन सिस्टम में कैसे लिखते हैं? अल्काइल अमाइन। और आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम में इट इज रिटन एज अल्केन अमाइन। ठीक है, अब है तो बहुत सिंपल। सपोज अगर हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें तो आप बताते जाना, इनका आईयूपीएसी और कॉमन नेम दोनों बताते जाना। बताते जाना मुझे। देखिए, इतने एग्जांपल्स जो है ना अभी आपके अमाइन में सारी तरह के नोमेनक्लेचर को कवर अप करने के लिए काफी है ना। मैं इतना डिस्कस कर देता हूं यहाँ पे, चलेगा? नोमेनक्लेचर में हमने बहुत टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी। इट इज जस्ट टू गिव यू अ रिकैप्चुलेशन ऑफ व्हाट वी हैव। रूल आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए है। तो इसका अगर मैं आईयूपीएसी नेम लिखूं तो आईयूपीएसी नेम इज मिथेनामाइन। एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट हो गया मिथ, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन एंड सेकेंडरी सफिक्स इज अमाइन, मिथेनामाइन। इसी तरह आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस इज इथेनामाइन, राइट? इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेन टू अमाइन। इसका हो जाएगा एन मिथाइल मिथेनामाइन। तो यहां पे एक बात और फिर से समझ लीजिए सनी, इस पर्टिकुलर केस में आप देखो ये सेकेंडरी अमाइन है। आमतौर पे जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो प्रीफिक्स के लिए हम न्यूमरल पोजीशंस डिनोट करते हैं, राइट? लेकिन यहां जो हम प्रीफिक्स लिख रहे हैं ये प्रीफिक्स, ये सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन से ही बॉन्डेड है, इसीलिए मैंने लिखा है एन मिथाइल। न्यूमरल पोजीशन की जगह पे मैंने अल्फाबेटिक पोजीशन यूज किया है, दैट द मिथाइल ग्रुप इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम, सो एन मिथाइल। और उसके बाद ये आपका पेरेंट चेन का हो गया मिथेनामाइन। सेम वे यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इसको हम पेरेंट चेन में कंसिडर करेंगे और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो दिस विल बी एन मिथाइल इथेनामाइन। और ये क्या हो जाएगा? एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथेनामाइन। इजी। आईयूपीएसी नेम बहुत सिंपल है ना? कॉमन नेम भी देख लीजिए। इसका कॉमन नेम है
This is methylamine. This one is ethylamine. This one is isopropylamine. This is dimethylamine. This one is ethyl methyl amine, and this is ethyl या dimethyl ethylamine. Dimethyl ethylamine. सिंपल, इजी है, रूल याद आ गया. चलिए pause it. Now after understanding nomenclature, structure of amines, now let's move on to the main part of this chapter, that is preparation of amines. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस से होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज से होती है और डायजोनियम सॉल्ट से होती है. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस राइट नाउ. इसमें फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स बाय रिडक्शन, और आप चाहो तो इसको बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स ऐसे भी लिख सकते हो, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. बहुत सिंपल है ये. इसमें वी विल स्टार्ट विथ नाइट्रोबेंजीन. आप एलिफेटिक भी ले सकते हो, मैंने एरोमेटिक कंपाउंड से शुरुआत की है, नाइट्रोबेंजीन. एंड व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड कैटालिटिकली, अगर इसका कैटालिटिक रिडक्शन किया जाए in presence of finely divided nickel, platinum और palladium as catalyst at around 373 Kelvin. हाँ, तीनों में से कोई एक ले सकते हो. NO2 group converts into NH2. क्या बन गया ये? एनिलीन. ये कंपाउंड क्या था सनी? दिस इज नाइट्रोबेंजीन. And from nitrobenzene it converts now to aniline. Easy. Alternatively, nitrobenzene or nitro compounds can also be reduced by the combination of metal and acid. आप यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन टिन एंड HCl या फिर आयरन एंड HCl से भी कर सकते हो. इट कैन बी रिड्यूस्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टिन एंड HCl और आयरन एंड HCl. इसमें भी आपको क्या मिलेगा? द प्रोडक्ट विल बी सेम. NO2 ग्रुप कन्वर्ट्स टू NH2. एनिलीन विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट. अब यहाँ इस पर्टिकुलर पार्ट से ना एक गिव रीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, याद रखिएगा. वो ये आता है that for conversion of nitro compounds into amines, iron and HCl are most preferred. आयरन और HCl जो है इसके रिडक्शन के लिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है. सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में आयरन और HCl ही यूज किया जाता है. इसका रीजन है, ऐसा क्यों किया जाता है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, और वो रीजन है that here scrap iron is used. तो scrap iron तो scrap ही है, ऑलरेडी आप scrap को यूज कर रहे हो, मतलब you are making use of the scrap, तो इकोनॉमिकली चीप होगा. दूसरा, to initiate the reaction only a small amount of HCl is required. शुरुआत में आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि HCl will react with iron to form FeCl2 and H2. H2 तो इसका रिडक्शन कर रहा है,
और जो FeCl2 फॉर्म हुआ फेरस क्लोराइड, that hydrolyzes further and produces more amount of HCl. FeCl2 हाइड्रोलाइज होके और ज्यादा HCl प्रोड्यूस करता है, which will react with the remaining iron scrap and will be continuously providing you hydrogen gas. तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, that for the reduction of nitro compounds to amine, iron and HCl are most preferred. रीजन क्या है इसका? क्या रीजन है? स्क्रैप आयरन and HCl are most preferred प्रेफर्ड का स्पेलिंग यही होता है ना, मोस्ट प्रेफर्ड एज FeCl2 formed in the reaction hydrolyzes to produce HCl. Thus, only a small amount of HCl is required at the beginning. ठीक है, scrap iron and HCl are most preferred in this reaction. Why they are most preferred? As FeCl2 formed in the reaction. यहाँ पे आयरन और HCl के रिएक्शन से पहले क्या बनेगा? FeCl2 and H2. तो FeCl2 जो फॉर्म हो रहा है that hydrolyzes and produce HCl. तो रिएक्शन को शुरू करने के लिए at the beginning only small amount of HCl is required. ठीक है, तो ये क्या होगा? इकोनॉमिकली चीपर, नहीं सस्ता पड़ेगा ये. चलिए सेकंड है, सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का बाय अमोनोलिसिस ऑफ alkyl halide. By ammonolysis of alkyl halide. बहुत सिंपल रिएक्शन है ये भी. लेट्स टेक वन अल्काइल हलाइड, जनरल फॉर्म ही लेता हूं RX, और इसकी रिएक्शन करता हूं मैं अमोनिया से. ठीक है, सो यहाँ पे अमोनिया, आपको पता है ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा है. अमोनिया हियर एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, है ना, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जब एक्ट करेगा तो इट विल बी इनिशियली फॉर्मिंग एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट RNH4 प्लस X माइनस, ये बनाएगा, ये बना अमोनियम सॉल्ट. ठीक है, इस अमोनियम सॉल्ट को आगे जब हाइड्रोलाइज किया जाएगा बेस से, दैट विल बी डिकम्पोजिंग एंड विल कन्वर्ट इनटू अमाइन. कैसे? तो RNH4 plus X minus upon reaction with NaOH converts to RNH2 plus NaX plus H2O. ठीक है, but the twist behind this reaction is, there is a twist in this. Twist ये है that the primary amine formed here can further react with alkyl halide and can result into secondary amine. Secondary amine formed can further react with another alkyl halide molecule, can result into tertiary amine. And even tertiary amine can react with alkyl halide to form quaternary ammonium
सॉल्ट। ये आगे क्या फॉर्म कर सकता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने मुझे बोला नहीं, यहाँ पे RNH4 थोड़ी होगा, NH3 होगा ना। बाय मिस्टेक मैं जब अमोनियम बोल रहा था तो मुझसे NH4 लिखा गया। दिस इज NH3, राइट। तो ये यहाँ पे भी क्या बन रहा है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज गेटिंग फॉर्म। सो दिस मेथड ऑफन इज नॉट यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस because this gives mixture of primary, secondary and tertiary amine. क्या देता है ये? Mixture of primary, secondary and tertiary amine. This method gives mixture of primary, secondary and tertiary amine. But you can increase the yield of primary amine in this. कैसे? On taking large excess of ammonia, primary amine is formed as मेजर प्रोडक्ट। अगर हम इसमें लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया लेते हैं तो प्राइमरी अमाइन विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो मैंने रेड पेन से जो लिखा है ना, रेड मार्कर से, ये दोनों पार्ट एक्चुअली बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन से रिलेटेड पूछा जाता है दैट व्हाई आयरन एंड HCl आर प्रेफर्ड। तो आयरन और HCl की प्रेफरेंस आपको पता चल गई। क्यों? क्योंकि FeCl2 जो फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में, दैट हाइड्रोलाइजेस एंड प्रोड्यूसेस मोर HCl, so that is why only small amount of HCl is required to initiate the reaction. इकोनॉमिकली चीपर होता है। दूसरा ये पूछा जाता है that in the ammonolysis of alkyl halide how we can obtain primary amine as the main product or major product. तो इसमें if we take large excess of ammonia, अगर हमने अमोनिया एक्सेस में ले लिया तो आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अमाइन विल बी फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड ज्यादा अमाउंट में है तो क्या करेगा? विल बी फॉर्मिंग मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन एंड दैट इज देन डिफिकल्ट टू सेपरेट। इसको सेपरेट करना फिर मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए तो ये दो मेथड जल्दी फटाफट कंप्लीट कीजिए, देन वी विल सी द नेक्स्ट वन। मेथड बताया ना, दिस इज थर्ड। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। सभी रिएक्शन में ना, मतलब कोई बच्चा अगर कहता है ना कि याद नहीं रहता, समझ नहीं आता, तो फिर मुझे बहुत दया आती है फिर ऐसे रिएक्शंस में। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्राइल आपको पता है दैट वी हैव अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, है ना। रिडक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? वी रिक्वायर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में आप क्या यूज कर सकते हो? यू कैन यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड, यू कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यू कैन यूज सोडियम अमालगम एंड इथेनॉल, है ना, SN एंड HCl। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक तो यूज कर रहा हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड। अच्छा, इसका आप कैटालिटिक रिडक्शन भी कर सकते हो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे दो दिखा रहा हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर सोडियम अमालगम एंड इथेनॉल। ठीक है, इससे क्या होगा? ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और दो दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो दिस फॉर्म्स RCH2 NH2। इजी। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अब सिंगल बॉन्ड है,
यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई था, 2 पाई ब्रेक होके हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, इजी। ये जो स्पेसिफिक रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, दिस इज यूज्ड इन एसेंट ऑफ सीरीज। एसेंट ऑफ सीरीज का मतलब ये हुआ, दिस इज यूज्ड टू ऑब्टेन स्टार्टिंग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इसमें हम प्रिपरेशन अगर अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करते हैं तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अमाइन विथ 1 कार्बन ग्रेटर कंपेयर टू द अल्काइल हैलाइड। जैसे सपोज ये कन्वर्जन आप कंसिडर कर लो, क्लोरोइथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल। अभी एसेंट ऑफ सीरीज का मतलब समझ में आ जाएगा। तो क्लोरोइथेन टू प्रोपेन नाइट्राइल में मैं कैसे कन्वर्जन शो करूंगा? पहले मैं क्लोरोइथेन से स्टार्ट कर रहा हूं, CH3 CH2 Cl। मेरे पास यहां 2 ही कार्बन है, जबकि यहां प्रोडक्ट में 3 कार्बन होंगे। तो आपको मैंने बताया है कि ऐसे कन्वर्जन्स को हम स्टेप अप कन्वर्जन कहते हैं, एसेंट ऑफ सीरीज और स्टेप अप कन्वर्जन, जिसमें पोटेशियम साइनाइड का यूज तो बहुत कॉमन होता है। पोटेशियम साइनाइड एक्वस अगर हम यूज करेंगे, यहाँ पे आप AQ भी लिख सकते हो, तो क्या होगा? रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे आ जाएगा CN, और इसके बाद आप इसका रिडक्शन कर लो। ये रिएजेंट यूज करना है तो ये करो, या फिर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 NH2. So what you can observe that the number of carbon in the amine is 1 greater compared to the starting compound alkyl halide. So that is why it is known to give ascent of series. इसलिए कहा जाता है कि इस रिएक्शन में it results into ascent of series. ठीक है सनी, आ रहा है समझ में? पक्का? चलो नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें वी स्टार्ट विथ दिस अमाइड, ठीक है, और यहां पे रिडक्शन करते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इससे क्या होगा? ये जो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है ना, दैट कन्वर्ट्स टू CH2। द कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट्स टू CH2, ठीक है, बन गया अमाइन। नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। 2 क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर मेथड से निकल के आएगा। वो है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। देखिए प्रीवियस चैप्टर में व्हेन वी वर स्टडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शंस, उसमें रिएक्शन विद अमोनिया में याद करो थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से दिखाई थी, जिसमें पहले अमोनियम थैलेट फॉर्म हुआ था, अमोनियम थैलेट को हीट करने पे थैलामाइड बना था, और थैलामाइड को स्ट्रॉन्ग हीट करके थैलीमाइड बना था। और मैंने कहा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा। तो वहां जो थैलीमाइड प्रिपेयर हुआ, दैट थैलीमाइड नाउ विल बी यूज्ड इन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विथ थैलीमाइड हियर। दिस इज योर थैलीमाइड। प्रथम यही है ना, ये थैलीमाइड है, और थैलीमाइड की रिएक्शन में करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से।
हाँ, so a molecule of H2O will be lost and it will be forming potassium thalamide. क्या फॉर्म करेगा? पोटेशियम थैलीमाइड. पोटेशियम थैलीमाइड क्या होगा वो दिखा रहा हूं. नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहेंगे पोटेशियम थैलीमाइड. एंड नाउ पोटेशियम थैलीमाइड will react with alkyl halide. तो यहां पे अल्काइल हैलाइड का ना ध्यान से मेरी बातों को सुनना, इसमें एक छुपा हुआ क्वेश्चन भी है, लास्ट में पूछूंगा. दिस अल्काइल हैलाइड अंडरगोज SN2 रिएक्शन. कैसा रिएक्शन होगा इसका? SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन होगा. कैसे? ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप और यहां से बॉन्ड क्लीवेज. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहां पे KX का रिमूवल होगा और इसके साथ आपको मिलेगा इसको कहते हैं एन अल्काइल थैलीमाइड. एन अल्काइल थैलीमाइड. एंड फाइनली दिस एन अल्काइल थैलीमाइड देन ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. एन अल्काइल थैलीमाइड का रिएक्शन किससे करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से. अपॉन रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पे बॉन्ड क्लीवेज होगा. देखो यहां ऐसे दिखाता हूं, ये सिर्फ समझने के लिए है. यहां ऐसे बॉन्ड क्लीवेज हुआ, एक OH यहां पे, या OH नहीं, ये सोडियम सॉल्ट बनाना है ना, तो ONA एक यहां पे भी ONA और दो हाइड्रोजन यहां पे, राइट? ऐसे होगा. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक तो प्रोडक्ट बना RNH2 और दूसरा सोडियम थैलेट. दूसरा क्या बना? सोडियम थैलेट. एग्जामिनेशन में आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको रिएक्शन याद रहे, यहाँ के बाद क्या स्टेप हो रहा है वो याद रहे, इसके लिए बताया है कि इस वाले पार्ट में एक्चुअली जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है HNOH, लेकिन क्योंकि बेस से कर रहे हैं तो बेस में मैंने OH की जगह पे ONA का एडिशन दिखाया. ठीक है, इस तरह से लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये पार्ट शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, अ कॉमन way of understanding the reaction step over here. ठीक है, अब इस रिएक्शन से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें. पहला तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इटसेल्फ इज आस्क्ड समटाइम्स इन 1 मार्क, समटाइम्स इन 2 मार्क्स. कभी 1 मार्क में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 मार्क में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि 0.25 मार्क्स कैन बी गिवन फॉर ईच स्टेप. तो 4 स्टेप है, 1 2 3, मतलब आपका 2 मार्क इसमें एडजस्ट कर दिया जाता है किसी ना किसी तरह से आइडेंटिफिकेशन का पार्ट जोड़ के. ठीक है, तो 1 मार्क में भी पूछते हैं, 2 मार्क में भी पूछते हैं, डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द एग्जामिनर. दूसरा पार्ट ये पूछा जाता है कि दिस गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज नोन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ओनली. इस मेथड में आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन ही बना सकते हो. यू कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक अमाइन बाय दिस मेथड. इस मेथड से आप एरोमेटिक अमाइंस प्रिपेयर नहीं कर सकते. और एरोमेटिक अमाइंस इसमें क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, उसका रीजन मैंने इस स्टेप में ही आपको बता दिया है, हिडन है. बोलिए, व्हाई एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड? अच्छा, एरोमेटिक अमाइंस के लिए यहां पे क्या लेना पड़ेगा? अराइल हैलाइड. कैसी रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन.
अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए लेस होती है। 4 रीजन पढ़े हैं ना आपने, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, instability of phenyl carbocation and repulsion, possible repulsion of nucleophile। तो इन सभी वजह से अराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन and that is why we cannot take aryl halide here, we cannot obtain aromatic amine here। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं Gabriel Thalamide synthesis used for preparation of primary aliphatic amine or amine only। Aromatic amines cannot be prepared by this method as aryl halide are very less reactive towards nucleophilic substitution reaction। ठीक है, aromatic amines cannot be prepared by this method as aryl halide are very less reactive towards nucleophilic substitution reaction। इजी समझ गया ना, मैंने बोला था कि इस पर्टिकुलर सिंगल रिएक्शन से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे, एक तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इटसेल्फ है ना, दूसरा एक मिनट 3 क्वेश्चन आएंगे, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, बताता हूं। पहला आएगा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन, दूसरा आएगा ये वाला क्वेश्चन दैट व्हाई एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। उसका रीजन है that aromatic amines के लिए we have to use aryl halide and aryl halide are very less reactive towards nucleophilic substitution। समझ रहे हो शौर्य, पक्का? चलिए, और तीसरा क्वेश्चन आएगा what is the nucleophilic reagent or what is the nucleophile in Gabriel Thalamide synthesis। this is the nucleophile। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। थैलीमाइड आयन, हाँ थैलीमाइड आयन, पोटेशियम थैलीमाइड या सिंपली थैलीमाइड एन आयन। ठीक है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में आता है तो स्ट्रक्चर भी बता सकते हो आप। चलिए, लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का, लास्ट मेथड है हॉफमैन ब्रोमोमाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड rearrangement। This is a rearrangement reaction, you will understand why this is rearrangement। Hofmann bromamide rearrangement, इसमें we first start with amide, amide से शुरू करते हैं और अमाइड की रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन एंड इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ वी टेक इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन
इसके साथ मिलता है सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ मिलता है NaBr और क्या H2O। देखो तो बैलेंस हुआ क्या, 4 हाइड्रोजन है इधर और 4 ऑक्सीजन है, टोटल 5 है, तो यहाँ पे हो गया ना। कैसे 2 सोडियम है, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गए ना। तो इस पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस पूरे रिएक्शन में द अल्काइल ग्रुप इज माइग्रेटिंग फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप। पूरे रिएक्शन में इसको और इसको ध्यान से देखो, कार्बन और द अल्काइल ग्रुप हियर हैज माइग्रेटेड फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप। और जो प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के कंपैरिजन में एक कार्बन कम है नहीं, तो ये क्या देगा आपको, स्टेप डाउन कन्वर्जन में काम आएगा। दिस विल बी यूज्ड इन स्टेप डाउन कन्वर्जन्स। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन गेट्स ओवर हियर, अमाइन की प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई। और अभी आपने इसमें जितने भी रिएक्शंस पर है ना, ये सारे रिएक्शंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले रिएक्शंस हैं। गैब्रियल थैलीमाइड भर भर के पूछा गया, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, जैसे मैंने आपको रीमर टाइमन और क्लेमेंसन वुल्फ किश्नर के बारे में बोला है ना, वैसे ही ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रीअरेंजमेंट है। कभी भी कोई ऐसा पेपर होगा ही नहीं जिसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड नहीं पूछा होगा, डेफिनेटली पूछेंगे। और रीअरेंजमेंट क्यों कहते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछेंगे कि व्हाई दिस इज नोन एज रीअरेंजमेंट। तो आपको बताना पड़ेगा दैट द अल्काइल ग्रुप माइग्रेट्स फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन टू द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीनो ग्रुप, रिजल्ट्स इनटू 1 कार्बन लेस इन द प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए तो आज यहां तक रखें, दैट्स एनफ फॉर टुडे। We have started the chapter and preparation of the amines is over here. Tomorrow we will try to cover up chemical properties entirely. Let's see कितना cover up हो पाता है, depending upon the battery life of this recording device. Fine.